हेलो। नमस्कार बच्चों। We will discuss today about the income and expenditure account. You know, last time online class live telecast through Facebook, we have discussed not profit organization about the what is NPO, understand the term and definition of the NPO and features of NPO. Then we discuss about the receipt payment account. Receipt payment account was as a cash book and it is a capital nature accounts which include all the cash transactions about the previous year, current year, future years and last years. But now I discuss today about the income and expenditure account. What is income and expenditure account? Why we do not say it and profit and loss account? Because I said already said to you that the NPO is not profit and organization and its motive is not earning profit. So that we cannot say the profit and loss account. For financial statements and for income tax purpose and other purpose, we prepare final account, financial statements accounts. So income and expenditure account is a part of that. As a profit loss account, same treatment is made in income and expenditure account. You know, in profit loss account, debit side, we recorded all the transaction related to expenses related to current year, only for current year, not for future year, not for last year or not for previous years. And credit side, we recorded all the incomes and gains related to current year, so that we also treat it in income and expenditure account same date all the expenses of NPO firm, NPO organization about the expenses in the debit side that we call expenditure side. Expenditure side, all the transaction and expenses and losses are recorded in the debit side after all the adjustment, after here clearly understand clearly, after adjustment of all the expenses of future year, advances like advances we paid and outstanding or previous years advances, etc. after the adjustment only related to current financial year. Like this financial last year financial year 2019-20, we will record only the expenses and income related to 2019 and 20 year, not for it 2018 and 19 year
and 2020-21 year. After adjustment of all the transactions, all the expenses, transaction revenue expenses. This is account is revenue nature account. All the revenue related expenses and income after the adjustment of last previous years and current year and future years. Then calculating account come to current years. Last, you know about you prepare the profit loss account or of sole proprietor in the 11th class. Same date, so that the income and expenditure account is a type of assets account. No. Assets account was the receipt payment account. Income and expenditure account is a revenue account, revenue nature account, revenue expenditure account, not a assets account. And all expenses and income are only for the current year are recorded. As I write, I circulate to you PowerPoint presentation. You have read my notes in which I already written about this, and you have read. Then account only for accounting period. Closing balance of income and expenditure account is what? Uh, what? Closing account का बैलेंसिंग व्हाट वेटिंग द बैलेंसिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लिखते थे नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉसेस so that instead of profit and losses we write surplus or deficit. Confirm? Understand? We write here only surplus or deficit. As a profit, write in 11th class, we write surplus amount which is transferred to capital account for adding, and deficit as a loss, we write here deficit account, and which is less from capital account in the balance sheet. Understand? I hope you have understand this. After no treatment of हमारे रिसिप्ट पेमेंट में क्या था? नो ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड. लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ all treatments of prepaid, outstanding, advance, accrual, income and expenditure. ठीक, ओके. तो all treatments, these are also features of this. अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक हम एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है नहीं? डेबिट साइड में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखेंगे, फिर लिख देंगे हम फॉर द ईयर एंडेड 2019-20, और फिर नीचे कॉलम बनाएंगे डेबिट साइड का एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड का इनकम अकाउंट. अब इनकम बीच में हम अमाउंट लेंगे. एक्सपेंडिचर में जैसे हम एग्जांपल में कुछ ले रहे हैं यहाँ पे, बाकी तुम बुक से डिटेल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करना. और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने जो अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, केवल व्हाट्सएप पे ही मेरे से कांटेक्ट करना या ईमेल के थ्रू. मैं दोबारा बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप ओनली है 9958263430, 9958263430, ओनली फॉर व्हाट्सएप यूज करना है आपको. और मेरा ईमेल एड्रेस है narendra@gmail.com. दोनों मीडियम से तुम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो. अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की दिक्कत आती है, तो क्वेरी लिख सकते हो,
फेसबुक पे कमेंट दे सकते हो, व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, और वहाँ से मैं फिर आगे की वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं एक्सपेंडिचर साइड लेते हैं। जैसे एग्जांपल में जनरल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, सैलरी हम पेमेंट करते हैं टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमने यहाँ पे मान लिया है 250। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट 500, जैसे मैंने आपको सबको लिख के दिया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, उसे आप खोल के चेक कर सकते हैं। टू इंटरेस्ट और लोन, जो हमने लोन ले रखा था उस पर इंटरेस्ट पेड करा है, और हम यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद 750 आया है। 750 रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड रेट्स 2000। और जो है हमारे पास अब उधर आ जाएंगे हम क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आफ्टर कैलकुलेशन मतलब कि हमने प्रीवियस ईयर के जो हमारे पास एडवांस थे प्रीवियस ईयर में वो हमने ऐड कर लिए, जो हमारे आउटस्टैंडिंग थे वो माइनस कर लिए, करंट ईयर के जो हमारे आउटस्टैंडिंग है वो ऐड कर लिए, जो नेक्स्ट ईयर की और जो नेक्स्ट के लिए एडवांस है वो हमने माइनस के लिए, इस तरह ऐड लेस करके सारी कैलकुलेशन करके हमने सब्सक्रिप्शन की नेट अमाउंट निकाली, जो यहाँ पे 50,000 हमारी कैलकुलेट हुई। तो 50,000 हो गई। लोकल रेंट है हमारे पास, बाई लोकल रेंट 500, बाई जनरल डोनेशन। हाँ, इधर ध्यान रखना है, डोनेशन अगर स्पेसिफिक है वो तो बैलेंस शीट में जाएगी, और जनरल है वो हमारे पास यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी। इससे बहुत से बुक्स, बहुत से टीचर्स, बहुत से लोग बहुत आते हैं कि डोनेशन जो है आप ये देख लो कि बड़ी अमाउंट है तो उसे कैपिटलाइज कर दो, छोटे अमाउंट है तो वहाँ पे हम उसको बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ऐसा कुछ फंडा नहीं है। एक फर्म है, एक बड़ी एनपीओ जिसके लिए 5 लाख रुपए छोटी अमाउंट है, एक एनपीओ जिसके लिए 5,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। इस तरह हम अपने दिमाग से या अपनी साइड से कुछ नहीं करेंगे जब तक हमारे पास क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई डिटेल नहीं दे रखी हो। अगर जनरल डोनेशन लिखिए तो जनरल डोनेशन चाहे वो 5,000 की है, 5 रुपये की है, चाहे 50 लाख की है, वो सब जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है, किसी पर्पज के लिए दे रखी है, टूर्नामेंट के लिए, बिल्डिंग के लिए, या जैसे अब मैंने उदाहरण पहले दिया था आपको कि पीपी किट के लिए दिए है, या जो है हमारे को वेंटिलेटर के लिए दिए है, जिस पीएम केयर में बहुत सारे दे रहे हैं। सलमान खान ने वेंटिलेटर्स के लिए, पीपी किट के लिए दिए है, और टाटा ने भी, टाटा सन्स ने, टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ दिए कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिए। तो पीएम केयर भी एज ए एनपीओ काम करता है, तो फिर वहाँ पे भी जो है, हाँ वहाँ पे भी जो है यही ट्रीटमेंट हुआ। तो उसको जो जनरल डोनेशन है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, और स्पेसिफिक डोनेशन बैलेंस शीट में जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जनरल डोनेशन 5,000 है, वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले ली है। तो अब इसके बाद हम एंट्रेंस फीस हम क्यों कैपिटलाइज नहीं करते इसको, क्योंकि तुम जानते हो कि मेंबर्स की एंट्री जनरली हर साल होती रहती है। तो ऐसा नहीं कि वो एक एनपीओ के पीरियड में मेंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम एंट्रेंस फीस को इनकम रेवेन्यू नेचर की मान के इसको हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देते हैं। और अगर लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस जो है मेंबर लाइफ में एक बार देता है, तो इसलिए उसको हम कैपिटलाइज नेचर की मान के बैलेंस शीट में डालते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे लीजेसी है, लीजेसी जो विल पे दी जाती है वो भी हम बैलेंस शीट में ही शो करेंगे। इस तरह की आइटम को थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने एंट्रेंस फीस लिए क्योंकि ईयरली हर साल कोई ना कोई एक आध मेंबर एंट्रेंस करता रहता है, तो इसलिए हमने जिसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एट साइड में लिया, वो हमने 500 ले ली। लोकल रेंट हमारा 500 था, जनरल डोनेशन में यहाँ पे 200 मानिए, 200 थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया जो इनकम साइड का 51,200, और इधर हमने इसको टोटल करके हमारे पास सरप्लस अमाउंट आ गई
48,700 जो हमने ट्रांसफर टू कैपिटल फंड में कर दी। ठीक है ना। जो कैपिटल अकाउंट जैसे तुम 11th क्लास में बनाते थे और सोल प्रोप्राइटर का सेम है, वहाँ पे ये आपका कैपिटल फंड बन गया, उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे। इतना क्लियर। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर थोड़ा सा और आगे चलना चाहे तो चल लेते हैं, थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है नहीं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आता हो या कुछ गलती लगे तो मेरे को बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान को परफेक्ट नहीं है, लर्निंग है, लाइफ टाइम लर्निंग रहती है। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी एक लर्नर ही हूँ, चाहे किसी भी रूप में हूँ। और आप भी एक लर्नर है, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं टीचर हूँ, फ़र्क नहीं है बस। ठीक है ना। लर्निंग कभी एंड नहीं होती, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलता है। तो अब बैलेंस शीट के लिए भी हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि इसे एन पी अकाउंट में, एन पी एफ फर्म जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जनरली हमारे पास कैपिटल फंड दिखाती नहीं है। वो केवल जिस पेमेंट अकाउंट बनाएगी उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे देगी। अब उन एडजस्टमेंट्स में से हमें छांटना होता है, करना होता है कि कहाँ से हमारे को कैपिटल नेचर की आइटम निकालनी है, बैलेंस शीट की आइटम निकालनी है। हमें इसलिए यहाँ पे एक ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जैसे 2019 का हम बैलेंस शीट 19-20 की बना रहे हैं, तो हम एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट कहलाती है, जिसमें से हमें बैलेंसिंग फिगर जो निकालेंगे वो बैलेंसिंग फिगर हमारा कैपिटल फंड होगा। तो हम सारी अपनी पहले एसेट साइड की आइटम वहाँ से ढूंढ लेंगे। जैसे एसेट साइड की आइटम देखेंगे हम रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, या हमारे पीछे नीचे एडजस्टमेंट से दी होंगी कहीं से भी। जो कोई जैसे इंटरेस्ट हम इन्वेस्टमेंट का ले रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से हमारे पास कैलकुलेशन मिल जाएगी कि जो है कहीं ना कहीं हमारे पास हाँ लास्ट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में फॉर्मेट, वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तुम्हारे को पता ही है। लाइबिलिटी साइड फिर अमाउंट है, फिर एसेट साइड फिर अमाउंट है। ठीक है ना। अब हम पहले एसेट साइड को लेते हैं। तो एसेट साइड में फिक्स एसेट जितनी हमारी बिल्डिंग है, फर्नीचर्स है, वे सारी अमाउंट ले लेंगे लास्ट ईयर की। फिर इन्वेंट्रीज जो हमारे पास थी पिछले साल, कोई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस थे, वो सब हम ऐसे साइड में लेंगे। एक्रुअल इनकम्स थी, एक्रुअल इंटरेस्ट थे, वे सारे जो अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुए हैं इसी इनकम, वे सब लेंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हमने एक्सपेंसेस एडवांस कर दिए हैं वो लेंगे। फिर कैश इन हैंड और कैश बैंक लेके इस साइड को क्लोज कर देंगे। क्लोज करके जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी लाइबिलिटी साइड को लेंगे, कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन आएगा हमारे पास, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, वो सब लेके हम इसका क्लोज करके डिफरेंस जो आएगा हमारा वो कैपिटल फंड आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल फंड फॉर द करंट ईयर। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे 2019 और 20 की। अब 2019-20 की बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, अब वो सेम तरह से काम करेंगे। फिक्स एसेट्स को लेंगे, फिक्स एसेट्स में कोई हमने एडिशन किया है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से मिल जाएगी हमारे पास एडिशन, उसको ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन भी हमारे को मिल जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर हमने बना ही लिया है, तो उसमें से लेस कर देंगे। इसमें सारी एडजस्टमेंट करके हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी। जैसे इन्वेस्टमेंट है, कहीं हमारे को इंटरेस्ट दे रहे हैं, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी। तो उस इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ लिख लेंगे। स्पेसिफिक फंड होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट अलग से करी जाएगी। ठीक है ना। वो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर हमारे पास कोई फंड मिला तो उसकी इन्वेस्टमेंट हम सारी अलग से करेंगे। कुछ तेज़ी से चल रहा हूँ तो मैं बता देना मेरे को। पिछली बार मैं आराम से चल रहा था तो एक दो बच्चे के कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ा गैप आप जाते ले रहे हैं, तो इसलिए आज थोड़ा मैं तेज़ी से ले रहा हूँ। ठीक है ना। फिर भी अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को लगे कि आज मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ, तो मैं भी उस दिन की तरह आराम आराम से पढ़ा। मुझे इससे कोई जल्दी नहीं है। ठीक है नहीं। तो
मैं घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारी वीडियो। कोई कमर्शियल यूज ना करे इसका, और कमर्शियल यूज के लिए भी है नहीं ये, ठीक है ना। मैं सब बच्चों के लिए, दिल्ली के बच्चे, इंडिया के बच्चे, ऑल ओवर वर्ल्ड के बच्चे, कोई भी स्टूडेंट्स जो है इसे यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। ये मैं कोई कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर ने बहुत, ईश्वर की कृपा है, ठीक है। अब जो है हम चल रहे थे इसमें, अब हम उसी तरह ले लेंगे सब्सक्रिप्शन जो है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग, एक्रूअल इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन एंड एट बैंक, क्लोज कर देंगे, और कोई आइटम हमारी कोई होगी ऐसे टाइप की, वो सारी इसके अंदर हम नोट कर लेंगे। फिर हमारे लाइबिलिटी साइड में हमारे गए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को हम लेंगे सबसे पहले ओपनिंग फंड, जैसे मैंने लिख के दिया है तुम्हारे पास, ठीक है ना। ओपनिंग फंड आ गया हमारे पास पिछली बैलेंस शीट से, उसमें ऐड कर दिया सरप्लस जो अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से लिया है, या डेफिसिट कोई आया है हमारे पास वो उसको लेस कर दिया। ये हमारा कैपिटल फंड है। अभी स्पेसिफिक फंड को हम लिखेंगे यहाँ पे, फिर ओपनिंग बैलेंस स्पेसिफिक फंड का, फिर इनकम या डोनेशन उसको ऐड कर देंगे स्पेसिफिक फंड के लिए, सर फिर इनकम मिली है, कोई डोनेशन मिली है तो उसको ऐड कर देंगे। कोई एक्सपेंसिस सामान्य की है उसी स्पेसिफिक फंड के लिए, अभी आगे बताऊंगा एक स्पेसिफिक फंड के 3 तरह के हम ट्रीटमेंट बताएंगे, ठीक है ना। उसको कैसे कैसे करना है वो लेस कर देंगे रिलेटेड टू दिस फंड ओनली, जिस स्पेसिफिक फंड का हम यहाँ पे लिख रहे हैं। स्पेसिफिक फंड हमारे पास एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। केवल उस फंड से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम या डोनेशन जो भी आएगी हमारे पास वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। और टोटल, अगर अब इसका टोटल पॉजिटिव आता है, मतलब प्लस है, हमारे पास कुछ बैलेंस बचता है एक्सपेंसेस के बाद, तो बैलेंस शीट में आएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव बैलेंस है तो हम बैलेंस शीट में नहीं लेंगे, ये इनकम एक्सपेंडिचर में हमारे पास चला जाएगा एक्सपेंसिव साइड में, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत बड़ी ध्यान रखनी है, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है ना। आज या कल, आज अगर टाइम है तो आज दे दूंगा, नहीं तो फिर कल की वीडियो में दूंगा, ठीक है जी। तो पॉजिटिव बैलेंस लेंगे हम इसमें जो है, और नेगेटिव बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में मिलेगा। इस तरह की सारी और लाइबिलिटीज की कोई छोटी मोटी आइटम होगी वो भी हम इसके अंदर टोटल देख लेंगे। बैलेंस शीट का हमारे पास फॉर्मेट बनाया है, फॉर्मेट मैंने थोड़ा सा आसान बनाया है, किसी को बुक्स में से देख के दिक्कत आए कुछ खाए तो कुछ सीखता है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करे, मेरे से खूब पूछे, जितना हो सकता है उतना पूछे, उससे मेरी नॉलेज बढ़ेगी। आप मेरे को, मैं कहता हूँ अपने बच्चों को कि मेरी खूब जान खाओ, मेरे से खुद खूब क्वेश्चन पूछो, खूब अपनी प्रॉब्लम्स पूछो, क्योंकि तुम प्रॉब्लम्स पूछते हो तो मेरी नॉलेज बढ़ती है। क्योंकि मैं देखता हूँ, फिर मान लिया कोई तुमने ऐसे हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले को क्वेश्चन पूछा, तो मैं भी बुक्स छानूंगा, मैं भी इधर उधर रेफरेंस बुक्स देखूंगा, तो मेरी नॉलेज अपडेट होती है। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे से पूछते तो मैं बुरा मानता हूँ, ऐसा नहीं है। हमेशा पूछो, करो, खूब जान खाओ, कहीं मर्जी से क्वेश्चन खाओ, कहीं मर्जी से चैलेंज लाओ मेरे लिए। मैं टीचर्स के लिए नहीं कह रहा, मैं टीचर्स तो मेरे से ज़्यादा परफेक्ट हैं, लेकिन स्टूडेंट्स का कहीं से भी चैलेंज लाओ, जिस चैलेंज को मैं स्वीकार जरूर करूँगा, कोशिश करूँगा कि उसे कहीं भी अपने सोर्सेज से रेक्टिफाई करके, और उसको रेक्टिफाइंग एरर्स की तरह, इंसान है गलतियाँ तो कर देता है, तो उसको सारी रेक्टिफाइंग करूँगा, अपडेट करूँगा, तो तुम्हारा धन्यवाद भी करूँगा कि तुमने मेरे से इस तरह के क्वेश्चन पूछे। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, स्टूडेंट्स से भी कहता हूँ मैंने। अच्छा, अब ये बैलेंस शीट हो गई। अब मैंने अभी बताया था फंड बेस अकाउंटिंग, जो हम स्पेसिफिक फंड की बात कर रहे थे, उसके एक दो उदाहरण हम यहाँ पे एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में, पहले बैलेंस शीट में देखते हैं जैसे ऊपर में लाइब्रेरी साइड में एग्जाम्पल फर्स्ट हम देख रहे हैं। जैसे हमने स्पेसिफिक फंड है हमारा टूर्नामेंट फंड, जो मैंने लिख के भी दिया है तुम्हारे पास, हाँ, ठीक है ना। अब टूर्नामेंट फंड में जो है मेरा पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं, और किसी को मेरा पावर पॉइंट चाहिए तो वो मेरे ईमेल पे भेज सकता है, मैं ईमेल से उसे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। नॉट फॉर कमर्शियल यूज, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट है टूर्नामेंट फंड।
24,000 हमारे पास टूर्नामेंट फंड टोटल है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर में हो गए 20,000 हो गए। तो अब हमारे पास 24 - 20 कितना बचा 4,000। पॉजिटिव बैलेंस है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं हम। तो टूर्नामेंट फंड है 25,000 और स्पेशल बैलेंस शीट में ही। और जो है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए हमारे 25,000 ही। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस में कोई इनकम नहीं हुई हमारी, तो अब हमारे पास जीरो बैलेंस है ना। अब ये हम बस शो कर देंगे इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, अमाउंट हमारी जीरो रहेगी। ठीक है ना। या ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास कोई लॉस नहीं है, कोई सरप्लस नहीं है, कोई हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं। बैलेंस शीट में सोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, वैसे कम ही आते हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए दे दिया अपनी तरफ से। अब तीसरा एग्जांपल है हमारा। अब हम इस टूना फंड फंड को कहाँ ले रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। स्पेसिफिक फंड है फिर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों ले रहे हैं, अब वो दिखाते हैं हम आपको। कि जैसे टूर्नामेंट एक्सपेंसिस हमारे हुए 35,000। हाँ, करंट ईयर में 35,000 टूर्नामेंट एक्सपेंसिस हुए। तो सबसे पहले हम एक्सपेंसिस साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में हम ले लेंगे डेबिट साइड जिसे हम बोलते हैं 35,000 टूर्नामेंट एक्सपेंसिस। अब टूर्नामेंट फंड का हमारे पास उस साल प्रीवियस ईयर पे हमारे पास था 25,000। 25,000 हमने उसमें से लेस कर दिया। अब टूर्नामेंट इनकम हुई हमारे पास सेल ऑफ टिकट्स के और अलग अलग तरह से जो भी है स्पॉन्सर के द्वारा किसी तरह भी वो हमारे पास जो इनकम हुई है वो कुल 5,000 हुई है। तो हमने इसको इसमें से 35,000 में से लेस कर दिया। अब 35,000 में से मैंने जो एक्सपेंसिस में, फंड में नहीं, टूर्नामेंट एक्सपेंसिस 35,000, क्योंकि टूर्नामेंट फंड तो हमारे पास कुल टोटल समझो 25,000 5,000 30,000 है। एक्सपेंसिस हो गए 35,000, 5,000 फालतू एक्सपेंसिस हो गए। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस होने के कारण हम इसको बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। हाँ, लाइबिलिटी नहीं दिखा सकते इसको हम इसको एक्सपेंसिस साइड में इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। 5,000 को हम इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे। ये फंड बैलेंस अकाउंटिंग हमारे सारे फंड के बारे में होगी, जो भी स्पेसिफिक फंड है। ठीक है। मैं एक बार दोबारा और बता देता हूँ तीनों एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था बैलेंस शीट में एक्सट्रैक्ट के रूप में लाइबिलिटी साइड में। हमने कहा था एग्जाम्पल फर्स्ट था हमारा कि टूर्नामेंट फंड हमारे पास 24,000 था। टूर्नामेंट एक्सपेंस हमारे पास 20,000 थे। 4,000 एक्स्ट्रा था हमारे पास, वो हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया। ठीक है ना। दूसरे एग्जाम्पल में हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल में तो हमारा टूर्नामेंट फंड 25,000 था और टूर्नामेंट एक्सपेंसिस 25,000 थे। तो हमारे पास हमने ये 25,000 तो एक्सपेंसिस है, 25,000 हमारे पास फंड है, तो हमने इसको जीरो बैलेंस हो गया। तो जीरो जो है हमने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया। तीसरा हमने एग्जांपल दिखाया टूर्नामेंट एक्सपेंसिस जो है हमारे पास 35,000 थे, जबकि हमारे पास टूर्नामेंट फंड 25,000 है और इनकम 5,000 30,000 हमारे पास टोटल टूर्नामेंट फंड की अमाउंट बचती है। 30,000 5,000 हमारे पास नेगेटिव बैलेंस था, तो हमने इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिया। ठीक है ना। आज हमने जो पढ़ा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, बैलेंस शीट्स के बारे में, हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था फंड बेस अकाउंटिंग के बारे में। ठीक है ना। और पिछली में हमने पढ़े थे अपना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, NPO, what is NPO, definitions, features of receipt payment, features of income and expenditure, और अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये सब हमने कर लिया। अब हमारे पास फाइनल रह जाएगा सब्सक्रिप्शन की। मैंने कैलकुलेशन बता तो दिए, लेकिन फिर भी एक आधा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जिससे आराम से वो कुछ बच्चे जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए एक दो एग्जांपल दूंगा जो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है ना। और फिर इसके बाद कंज्यूम्ड आइटम हम इनकम टैक्स लेक्चर में कैसे देते हैं, कैसे करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे जो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, फेसबुक से लाइव देख रहे हैं।
उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये फिर मैं रिमाइंड करा दूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फॉर द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं है, किसी जो है केवल ये बच्चों के बेनिफिट के लिए और हित के लिए ही मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ। जो चाहे सब्सक्राइब करे, जो चाहे मत करे सब्सक्राइब, जिसे जी करे वो देखो, जिसे मन करे मत देखो। जो नेगेटिव सोचे वो इसे छोड़ दो, जो पॉजिटिव सोचे या कुछ चाहता हो, अच्छा लगता हो कि शायद मेरी ये वीडियो अच्छी है तो और देखें, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। जय श्री कृष्ण। नमो